Welcome, students. In this video, we are going to continue the explanation of this short story, The Gift of the Magi. So, let us continue. Jim drew a package from his overcoat pocket and threw it upon the table. Now, Jim took a package out from his overcoat pocket and he threw it upon the table. उसने अपने ओवरकोट की पॉकेट से गिफ्ट बाहर निकाला और उसको टेबल पर फेंका. Don't make any mistake, Dell, he said, about me. I don't think there is anything in the way of a haircut or a shave or a shampoo that could make me like my girl any less. Don't make me wrong, Della. Nothing can make me like you any less. ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम कर दे. ओके. आई डोंट थिंक देर इज़ एनी थिंग इन द वे ऑफ अ हेयर कट, चाहे वो हेयर कट हो या शेव हो या फिर शैम्पू हो, जो कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम कर सकता है. सो प्लीज़ डोंट मेक एनी मिस्टेक. तो तुम मुझे गलत मत समझो. But if you will unwrap that package, you may see why you had me going a while at first. Then Jim explains the reason of his reaction. अब जिम जो है अपने रिएक्शन का रीज़न डेला को एक्सप्लेन करता है. He says that if you will unwrap this package that I gave you, then you will understand why did it upset me for a brief period of time. अब वो कह रहे हैं, डेला से जिम कहता है कि अगर तुम इस पैकेज को खोलकर देखोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि थोड़ी देर के लिए मैं अपसेट क्यों हो गया था. ओके. White fingers and nimble tore at the string and paper, and then an ecstatic scream of joy, and then, alas, a quick feminine change to hysterical tears and wails, necessitating the immediate employment of all the comforting power of the lord of the flat. So, with white fingers, Della quickly tore the gift wrap. Nimble means quickly. Okay, tore यानी फाड़ना. वाइट फिंगर्स और बहुत जल्दबाजी में जो डेला ने उसका स्ट्रिंग जो उस पर रस्सी लगी थी और पेपर था उसको अनरैप किया. एंड देन एन एक्सटेटिक स्क्रीम ऑफ जॉय. एंड देन शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई विद ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुशी के साथ. एक्सटेटिक स्क्रीम ऑफ जॉय, बेहद खुशी के साथ वो चीखने लगी. एंड देन अलास, और फिर तभी अलास, a quick feminine change to hysterical tears. Then suddenly her emotions changed to uncontrolled tears and cry. Hysterical, that means uncontrolled emotions. Okay. वहाँ पे बहुत ही क्विक चेंज, फेमिनाइन चेंज देखने को मिला. एकदम से खुशी जो थी वो गम में बदल गई. विद हिस्टेरिकल टीयर्स एंड वेल्स यानी क्राई यानी कि जोर जोर से चिल्लाते हुए रोना. दैट मीन्स वेल्स. necessitating the immediate employment of all the comforting powers of the lord of the flat. And the cry was so loud that it required all the comforting powers of the lord of the flat, who is Jim. इतना लाउडली डेला वॉज क्राइंग, वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से डेला जो थी वो चीखने चिल्लाने लगी, रोने लगी कि उसको कंसोल करने में, उसको कंफर्ट करने के लिए, सांत्वना देने के लिए जो था वो बहुत पूरी पावर, कंफर्टिंग पावर जो थी वो लॉर्ड ऑफ द फ्लैट की लग गई. यानी कि उसको चुप कराना बहुत ही मुश्किल काम हो गया. फॉर देयर ले द कॉम्स, द सेट ऑफ कॉम्स, क्योंकि जो गिफ्ट था वो क्या था? दी कॉम्स, कंघा होता है जिसे कॉम कहते हैं. द कॉम्स, द सेट ऑफ कॉम्स, ये एक पेयर था कॉम्स का. साइड एंड बैक दैट डेला हैड वर्शिप्ड फॉर लॉन्ग इन अ ब्रॉडवे विंडो. नाउ शी क्राइड बिकॉज द गिफ्ट वॉज द कॉम्स, द सेट ऑफ कॉम्स.
This set of combs Della had wished for long time that she saw in the window of a shop in a Broadway. ब्रॉडवे में एक शॉप की विंडो में डेला ने इसे देखा था और वो बहुत तहे दिल से उसे पाना चाहती थी. Beautiful combs, pure tortoise shell, and jeweled rims, just the shade to wear in the beautiful vanished hair. Now, the combs were very pretty. They were very beautiful. They were made of pure tortoise shell. कॉम जो थे वो बहुत खूबसूरत थे और वो जो थे वो प्योर टॉर्टोइस शेल से बने थे. टॉर्टोइस शेल यानी कछुए की जो खाल होती है उससे बने थे. एंड इट्स रिम वर ज्वेल्ड, और उसके जो किनारे थे वो ज्वेल्ड थे. दैट मीन्स दे वर ऑर्नामेंटेड, यानी कि उस पर बहुत खूबसूरत सजावट की गई थी. Just the shade to wear in the beautiful vanished hair. And their shade, their color was just perfect match for Della's vanished hair. Vanished means जो कि अब बर्बाद हो चुके थे. Okay, so their shade and their color was just perfect match for Della's vanished hair. और उनका जो शेड था वो डेला के बर्बाद हो चुके बालों से बिल्कुल मेल खाता था. They were really expensive combs, she knew, and her heart had simply craved and yearned over them without the least hope of possession. The combs were really expensive, Della knew it. Della जानती थी कि वो कॉम जो थे वो बहुत महंगे थे. She wanted to have them. She knew, and her heart had simply craved, वो चाहती थी उसे पाना, and earned over them without the least hope of possession. वो उसे पाना ज़रूर चाहती थी पर उसे बिल्कुल भी आशा नहीं थी कि वो उसे हासिल कर सकेगी. Okay, she wanted to have them but she never hoped, she never dreamed of their possession. वो उसे पा सकेगी ऐसा उसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, हालांकि वो चाहती ज़रूर थी ऐसा. And now they were hers. But the tresses that should have adorned the coveted ornaments were gone. And now the combs were hers. अब वो उसकी थे. But the hair, tresses means hair, बाल, that should have adorned the coveted adornments were gone. But जो बाल उनकी और शोभा बढ़ाने वाले थे वो तो जा चुके थे. The hair that should have adorned the desired adornment, they were gone. But she hugged them to her bosom, and at length she was able to look up with dim eyes and a smile and see, my hair grows so fast, Jim. And her hair were gone, so now the combs were of no use. But Della still hugged them. उसने उसको गले से लगाया जो कॉम थे. एंड आफ्टर सम टाइम शी वॉज एबल टू लुक अप विद सैड आइज एंड अ स्माइल. और कुछ देर के बाद उसने डिम आइज के साथ ऊपर की तरफ देखा और स्माइल किया. एंड शी सेज माई हेयर ग्रो सो फास्ट जिम, मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं जिम. And then Della leaped up like a little singed cat and cried, oh. Then she jumped up, like leaped up, कूदना या उछलना, like a little singed cat. Singed that means slightly burned, यानी हल्का सा जल जाना. And cried, वो ऐसी, हालांकि डेला दिखा रही थी, हालांकि वो पॉजिटिव चीज़ें बोल रही थी, बट वो अंदर से बहुत दुखी थी कि उसकी जो चीज़ वो पाना चाहती थी वो उसके पास आ चुकी थी, लेकिन अब उसकी यूज़ की वो नहीं रही थी, क्योंकि वो अपने बाल जो थी वो कट करके उसे सेल कर चुकी थी. राइट. शी क्राइड, ओह. जिम हैड नॉट येट सीन हिज ब्यूटिफुल प्रेजेंट. नाउ इट वॉज जिम्स टर्न टू सी हिज प्रेजेंट. अब जिम की बारी थी अपना प्रेजेंट को देखने की. She held it out
टू हिम ईगरली, ईगरली यानी उत्सुकता से. अपॉन हर ओपन पाम, पाम यानी हथेली. उसने, शी हेल्ड इट आउट टू हिम अपॉन हर ओपन पाम, उसने अपनी हथेली पर रख के जिम की तरफ वो गिफ्ट बढ़ाया. The dull precious metal seemed to flash with the reflection of her bright and ardent spirit. Dull precious platinum, that was a platinum fortune, right? So the dull and precious platinum, जो डल दिखने वाला और बहुत ही कीमती मेटल था प्लैटिनम, दैट वॉज शाइनिंग विद द रिफ्लेक्शन ऑफ डेलाज ब्राइट एंड अर्डेंट स्पिरिट. वो डेला की स्पिरिट, जो ब्राइट स्पिरिट थी, उसके रिफ्लेक्शन से वो मेटल चमक रहा था. दैट मीन्स डेला वॉज सो एक्साइटेड, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जिम को वो प्रेजेंट देने के लिए. ओके कि उसकी चमक की वजह से वो डल प्लैटिनम भी चमक रहा था या फिर शाइन कर रहा था. Isn't it dandy, Jim? Isn't it great, Jim? Dandy means great. Okay, ये expression है. I hunted all over town to find it. Isn't it great, Jim? I looked all over the town to find it. मैंने पूरा शहर छान मारा सिर्फ इसे ढूंढने के लिए. You will have to look at the time 100 times a day now. अब तो तुम्हें दिन में कम से कम 100 बार टाइम देखना होगा. Give me your watch. I want to see how it looks on it. Now you will have to look at the time 100 times a day now. Give me your watch. I want to see how it looks on it. मैं देखना चाहती हूँ कि ये फॉर्चून उस पर कैसी लगती है, तो प्लीज़ मुझे अपनी वॉच दो. Instead of obeying, instead of giving response to Della, Jim tumbled down on the couch. Jim just sat down on the couch. डेला को रिस्पॉन्स देने के बजाय, उसकी आज्ञा का पालन करने के बजाय, जिम जो था सिर्फ काउच पर बैठ गया. Put his hands under the back of his head and smiled. And he put his hands under the back of his head and smiled. अब उसने अपने हाथ जो थे वो अपने सिर के पीछे करते हुए सिर्फ स्माइल किया. डेल, ही सेड, उसने कहा, डेला, लेट्स पुट अवर क्रिसमस प्रेजेंट्स अवे एंड कीप देम अ वाइल. डेला, लेट्स जस्ट पुट अवर क्रिसमस प्रेजेंट्स अवे एंड कीप देम अवे फॉर अ वाइल. कि हमें कुछ देर के लिए अपने क्रिसमस गिफ्ट्स को जो है साइड में रख देना चाहिए. दे आर टू नाइस टू यूज जस्ट एट प्रेजेंट. वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं अभी यूज़ करने के लिए. I sold the watch to get the money to buy your combs. मैंने वॉच सेल कर दी है टू गेट द मनी, पैसे के लिए, ताकि मैं तुम्हारे लिए कॉम्ब खरीद सकूं. एंड नाउ सपोज यू पुट द चॉप्स ऑन. एंड नाउ आई थिंक यू शुड जस्ट कुक द मीट चॉप्स ऑन द गैस. और मुझे लगता है कि अब तुम्हें चॉप्स कुक कर लेने चाहिए. The Magi, as you know, were wise men, wonderfully wise men, who brought gifts to the baby in the manger. They invented the art of giving Christmas presents. Being wise, their gifts were no doubt wise ones, possibly bearing the privilege of exchange in case of duplication. Now, we know that Magi were very wise men who brought gifts for the baby Christ. हम जानते हैं कि मैजाई जो थे वो बहुत वाइज थे, जो क्राइस्ट के लिए उनके जन्म पर तोहफे लेकर आए थे. तो द बेबी इन द मेंजर, मेंजर मीन्स इट इज़ अ कंटेनर फ्रॉम विच कैटल्स और हॉर्सेस फीड. ऐसा कंटेनर होता है जहाँ से वो कैटल्स या जो हॉर्सेस होते हैं वो खाना खाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड मेंजर. ओके, यहाँ जो मैंजर है वो जो भेड़ों के बाड़े में यूज़ होने वाला मैंजर है उसकी बात हो रही है, क्योंकि क्राइस्ट का जन्म जो है वही हुआ था. ओके, उसको क्राइस्ट को जो मैंजर में रखा गया था, भेड़ के बाड़े में उनका जन्म हुआ था, वहीं उन्हें रखा गया था. सो दैट इज वाई दे आर क्राइस्ट इज कॉल्ड बेबी इन द मेंजर. दे इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ गिविंग क्रिसमस प्रेजेंट्स. So Magi invented the art of giving Christmas presents.
उन्होंने जो क्रिसमस पर तोहफे दिए जाते हैं, ये परंपरा मैजाई ने ही शुरू की थी. Being wise, their gifts were no doubt wise ones. क्योंकि मैजाई बहुत वाइज थे, their gifts were no doubt their gifts were very wise. उनके गिफ्ट्स भी बहुत वाइज थे, बहुत अच्छे थे. Possibly bearing the privilege of exchange in case of duplication, and there was a possibility of exchange in case of any duplication. Duplication यानी नकली या उसी तरह का दूसरा जो नकली अगर उनके गिफ्ट्स तोहफे होते तो वहाँ एक पॉसिबिलिटी थी कि उनको एक्सचेंज किया जा सकता था. And here I have lamely related to you the uneventful chronicle. Chronicles means kahani. Of two foolish children in a flat who most unwisely sacrificed for each other the greatest treasures of their house. And here, now author says, author में क्या कह रहे हैं, that here I have lamely told you, मैंने बहुत मूर्खतापूर्ण तरीके से तुम्हें सुनाई है ये कहानी of two foolish persons in a flat. दो ऐसे फुलिश चिल्ड्रन जो कि एक फ्लैट में रह रहे हैं, हु सेक्रीफाइस्ड फॉर ईच अदर द ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स ऑफ देयर हाउस, जिन्होंने अपने घर के सबसे कीमती तोहफों को एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस कर दिया. राइट, हु सेक्रीफाइस फॉर ईच अदर द ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स ऑफ देयर हाउस. But in the last word to the wise of these days, let it be said that all who give gifts, these two were the wisest. But in the end, he wants to say to the wise of these days, पर वो wise लोगों से ये कहना चाहते हैं that of all who give gifts, जितने भी लोग तोहफे देते हैं, these two were the wisest. ये सबसे अनमोल तोहफे थे और इनको देने वाले ही सबसे वाइज थे. Of all who give and receive gifts, such as they are wisest. Everywhere they are wisest, and they are the magi. So, of all who give and receive gifts, these two were the wisest. They are the wisest. Everywhere they are wisest. हर जगह वही wisest हैं और वो ही असल में magi हैं. So, here ends the story. Thank you.